Good morning, students. Hope you are well at your home and taking care of yourself. So, in today's video, we will read the rest of the part of the chapter, The Diary of a Young Girl, written by Anne Frank. Hope that you had liked the previous video of Anne Frank, and now today we will proceed further and will know more about Anne Frank. Dear students, in the last video we had read that Anne Frank got a present, a diary on her 13th birthday. She wants to write her every feeling in the diary, as she thinks that she doesn't have a true friend. Okay, so she gave name Kitty to her diary, and now we will see the next conversation of Anne Frank with her diary. So, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plan right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So, this is the starting lines of the paragraph. Here she wants to express that if she will not tell everything about her diary, Kitty, okay, then it is not right at all. Okay, Kitty will not understand Anne Frank feeling, so she decided that she will not jump right in and write about the events, but she want to discuss her life with Kitty. My father, so she had write like this. Okay, she is giving a brief sketch to the diary. Okay, my father, the most adorable father. You can see Anne Frank's feeling for her father. She loved her father. And what do you mean by adorable? Okay, the most lovable, okay, father I have ever seen. So she loved her father, and what she is saying here कि उसके जो father है वो दुनिया के सबसे best father है. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. और इनकी शादी कब हुई इनके पेरेंट्स की? जब उसके फादर 36 ईयर्स के थे और उसकी जो मदर है वो 35 ईयर की थी. माई सिस्टर, शी हैज़ अ सिस्टर टू. ओके, मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. ओके, मार्गोट का जन्म जो है वो 1926 ईयर में हुआ था. आई वॉज बॉर्न, आई इज एन फ्रैंक हियर, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और मेरा जन्म कब हुआ? 12 जून 1929. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. और जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. देन उसके जो फादर है वो वहाँ से हॉलैंड चले गए 1933 ईयर में. माई मदर एडिथ होलो फ्रैंक, दिस इज द नेम ऑफ मदर एडिथ. ओके, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर में मेरी मॉम भी मेरे फादर के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई. वाइल मार्गोट एंड आई वाज सेंट टू अगेन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर. और हमें कहाँ रुकना पड़ा? अपनी ग्रैंड मदर के पास. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में वो भी हॉलैंड चले गई, शिफ्ट हो गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज
फ्लाइंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। ठीक है, सितंबर में उसका बर्थडे जब होगा तब मार्गरेट का जब बर्थडे था, ओके, she means Anne Frank was invited in Holland. Okay, now I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. Okay, वो उसने जब तक वो 6 साल की थी उसने एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है, एट विच टाइम आई स्टार्टेड in the first form. Okay, in the 6th form my teacher was Mrs. Kupris, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Okay, जब उसने वहाँ से अपनी जूनियर क्लासेस पास करी, ठीक है, उसके बाद वहाँ से जाना जब पड़ा तो शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई। और सेम उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपरेस, उससे उसका बहुत अटैचमेंट था और उन दोनों को इस बात का बहुत दुख हुआ। ओके, both of them were very sad. Now in the summer of 1941 grandma fell ill. Okay, in 1941 her grandma, she was ill. ठीक है, वो बीमार हो गई and had to have an operation. ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन। ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रैनी से वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, तो वो क्या कह रही है कि उनका ऑपरेशन हुआ और उसका जो बर्थडे है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, इन अ कैजुअल वे दे हैड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। नाउ ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ठीक है, और इसकी जो ग्रैंडमा है वो 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ओके, वो क्या कह रही है अपनी किटी को, अपनी फ्रेंड को, ठीक है, कि किसी को अभी भी पता नहीं है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को कितना मिस करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती थी। ठीक है, तो शी शेयर्ड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड मदर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा candle was lit along with the rest. So this year, okay, giving the tribute to her grandma, they had celebrated her birthday and lighted a candle. Okay, the 4 of us are still doing well. हम चारों का सब कुछ अच्छा चल रहा है। It's mean कि उनकी फैमिली में Anne Frank is having 4 members and सब कुछ अच्छा है उसके साथ। And that brings me at the present date of 20 June 1942. Okay, and the Salman dedication to my diary, and this is my dedication to my diary. So in this way she had explained her life, explained her family to her dear diary Kitty. Okay, next, Saturday 20 June 1942. This is the entry in the diary by Anne Frank. Dearest Kitty. Okay, she is addressing to Kitty. Our entire class is quacking in its boots. Okay, the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will come back. Okay, if quacking in the boots means shaking with fear and nervous. Okay, हमारी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ठीक है, द रीज़न इज़ ऑफ कोर्स, क्या रीज़न हो सकता है नर्वस होने का स्टूडेंट्स का, इज़ फोर्थ-कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड, जो कमिंग मीटिंग, फोर्थ-कमिंग जो आने वाली मीटिंग थी जिसमें टीचर्स बताने वाले थे कि कौन आगे जाएगा और कौन इसी सेम क्लास में रहे। Half of the class is making beds, GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jackie, who have staked their entire holiday saving on their bed. Okay, so she has a friend GN. ठीक है, उन्हें इन बच्चों की बात, ये जो सिली बॉयज़ थे जो उनके पीछे 2 लड़के जो बैठे थे, उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ठीक है,
सीएन और जो जैक्यू थे उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी सेविंग्स एक शर्त पे लगा दी थी, ठीक है, कि पास होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम। और क्या शर्त थी वो, क्या बेट थी कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। यस यू आर, नॉट आई एम नॉट, ओके। सो even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down, ठीक है। जो जी है, जो उसकी फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काम फ्रेंड है, तो वो क्या कह रही है कि उसने बहुत कामली समझाया उन दोनों लड़कों को, उन दोनों बॉयज़ को, बट फिर भी वो चुप नहीं हुए और मैंने थोड़ा उनके ऊपर शाउट किया, ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया उनकी बात पे, फिर भी उन दोनों को हम चुप नहीं करवा पाए। If you ask me, there are so many dummies, okay? वो अपनी डायरी को लिख रही है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में बहुत सारे डमी बॉयज़ हैं, ठीक है, डमी स्टूडेंट्स हैं। डमीज मतलब जो बहुत, जिनमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो ब्रेनी ना हो। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और मुझे क्या लगता है कि मेरी जो क्लास है, क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्लास है, ठीक है, वो जो है उसे रोक देना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डम हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। लेकिन वो क्या कहती है, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो 1/4 क्लास जो है उसको रोक लेना चाहिए, वो रुक जाएगी, क्योंकि किसी ने किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, सब डम बच्चे हैं। लेकिन टीचर्स जो हैं उनका जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है उनका डिसीज़न क्या होगा, ओके। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, ओके। मैं जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके बारे में ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हूँ, मुझे उनसे मतलब उनके बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। एंड माई सेल्फ, बिकॉज मुझे पता है मैं अच्छे ग्रेड से शायद पास हो जाऊँ। वी विल मेक इट, ठीक है, वी विल पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। और क्या बोलती वो कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं शायद, मुझे लगता है कि मे बी इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। बस हम क्या कर सकते हैं, वेट करना है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स, एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और हमने एक दूसरे को क्या, हमने एक दूसरे को समझाया डैट इट्स अ टफ टाइम और वी हैव टू नॉट लूज़ आवर हार्ट। और हमें अपना जो पेशेंस है और हमें हमारी जो हिम्मत है वो नहीं खोनी चाहिए। हमें अपनी जो होप है, उम्मीद है कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, वो नहीं लूज़ करना चाहिए, वो होप हमें नहीं लूज़ करनी चाहिए। I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them, okay. Now Annie is explaining that how she has a great relationship with all her teacher, है ना, कि उसकी जो जितने भी टीचर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है उसका, ठीक है। 9 टीचर्स है उसके पास, 7 men, okay, and 2 women. Mr. Casing, okay, the old fogey who teaches Max, okay, was annoyed with me for ages because I talk too so much. सबसे उसका अच्छा रिलेशनशिप है, सबसे अच्छा बनता है ना, एक ग्रेट बॉन्ड शेयर करते हैं। बस एक टीचर है, ठीक है, जो कि थोड़ी ओल्ड फैशन पर्सन है, ओके। शी वॉज कॉन्स्टेंटली इरिटेड बाय द ऑथर्स टॉकेटिव नेचर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो उसके वो बहुत ज़्यादा उनको इस बात पे गुस्सा आता है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ओके। उन्होंने मुझे पहले बहुत सारी वार्निंग्स दी, ठीक है। और एनी जो है वो उसने बात करना कम नहीं किया, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया, ठीक है। कभी कभी आपके साथ भी होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं
तो टीचर कहता है कि ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो, तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, चलो इसको 10 टाइम्स आप लिख कर लाओगे, ठीक है। तो उसको भी एक्स्ट्रा होमवर्क मिल गया, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, ओके। एंड व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे? इट वाज अ चैटर बॉक्स, ठीक है। तो चैटर बॉक्स क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू चैटर और टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसको ऐसे लिख के लाना था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? वो डायरी से बोल रही है ना। एंड फ्रेंकी, इसके ऊपर तुम क्या लिख सकते हो? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, I decided, I jotted down and title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet, ठीक है। ओके, उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड टॉपिक है, इसके ऊपर वो क्या लिखेगी, ठीक है। उस समय उसे लगा कि शी वॉज नॉट एबल हाउ टू राइट ऑन द टॉपिक, ठीक है। सो शी रॉट द टॉपिक इन हर नोटबुक, और फिर उसने अपना बैग है उसमें रखा और कोशिश करी, फोकस्ड किया कि वो चुप रहे, वो क्वाइट रहें। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, ओके, जब मैं उस शाम को जब मैंने अपना सारा रेस्ट ऑफ अपना वर्क था, होमवर्क था, वो ख़त्म कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, दैन आई हैड सीन द नोट, ठीक है, जो सर ने मिस्टर केसिंग ने उसे दिया था टू राइट ऐसे, टू राइट एन ऐसे, ठीक है, उसने वो देखा। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen, okay, she was thinking about the subject कि हम मुझे क्या करना चाहिए, जब वो अपने पेन को चबा रही थी और सोच रही थी, ठीक है, कि उसे क्या लिखें, ठीक है। ये जेस्चर्स हैं, ठीक है, ये जो पेन चबाते हैं हम कभी कभी पेन को मुंह में लेकर, तो क्या हमें जेस्चर देता है कि हम बहुत गहरी बात जो है वो सोच रहे हैं। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking, okay। अब वो क्या सोच रही है कि कोई भी, अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो बहुत कुछ एमलेसली, बिना किसी एम के कुछ भी लिख देता इस टॉपिक पे, ठीक है, बहुत सारे स्पेस बीच में लीव कर देता, लेकिन बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन एन फ्रैंक को एक ट्रिक उसे लगा कि उसे ये जो इम्पॉर्टेंट इशू है टॉकिंग का, उसके ऊपर लिखना चाहिए, ओके। शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ टॉकिंग, आई मीन, ओके। I thought and suddenly I had an idea. उसने बहुत देर तक सोचा कि मैं किस तरीके से ये चीज़ प्रूव करूं कि बात करना अच्छा होता है, ठीक है। उसने बहुत देर तक सोचा एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और सडनली उसके दिमाग में कोई चीज़ आई, ओके। आई रोट द 3 पेज, ठीक है, मैंने 3 पेज लिखा। मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। आई आर्ग्यू दैट, मैंने क्या लिखा? I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under control. But what I had never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's too much you can do about inherited traits, okay।
ओके, हियर शी मैंशन दैट शी वॉन्ट टू बी अ बेटर स्टूडेंट, वो अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बनाना चाहती है, ठीक है। बट टॉकिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, पर उसे क्या लगता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है, जो बात करना है वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो बंद नहीं कर सकती, ठीक है। ये क्यों ऐसा बोल रही है? बिकॉज उसे क्या लगता है कि शी गॉट इट एज एन इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्योंकि ये उसको आप कह सकते हो कि विरासत में मिला है, ठीक है, फ्रॉम हर मदर, ठीक है। उसे लगता है कि उसकी ये जो बहुत ज़्यादा बात करने की जो उसकी क्वालिटी है वो उसकी मदर से उसे इनहेरिट हुई है। और एंड दिस इज़ हाउ शी एंडेड अप राइटिंग 3 पेज इन द टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से वो 3 पेजेस इस टॉपिक पे लिखती है। क्या समझाना चाह रही कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बात करती है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। Mr. Casing had a good laugh at my arguments, okay, when she had written about Chatterbox, okay. तो ये बात सुनकर मिस्टर केसिंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। When I proceeded to talk my way through the next lesson, और जब मैं बात कर रही थी कंटिन्यूसली नेक्स्ट लेसन पे, ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया एज अ पनिशमेंट। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉलेजिबल चैटरबॉक्स, और इस बार मुझे क्या मिला असाइनमेंट एज अ पनिशमेंट? समथिंग इनकॉलेजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, मतलब उसकी जो आदत है वो कभी वो बदल नहीं सकती, इसके ऊपर उसे ऐसे लिख के लाना था। आई हैंडेड इट इन, okay, and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons, okay, I had done it, और 2 लेसन तक, ठीक है, मैं चुप रही। However, during the 3rd lesson he had finally had enough, ठीक है, वो चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फाइनली 3rd लेसन जब हुआ he had finally had enough and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox, ठीक है। और 3rd लेसन में जो है मिस्टर केसिंग का जो पेशेंस है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि स्कैटर्ड हो गया, और उन्होंने दोबारा उसको पनिशमेंट दिया कि उसे एक और असाइनमेंट लिखना है, और इट वाज अबाउट क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के ऊपर उसको लिखना है। तो व्हाट डू मीन बाय मिस्ट्रेस? अ वुमन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, ठीक है। सो शी हैव टू राइट ऐसे अगेन। नाउ द क्लास रोड, ठीक है, सबको हंसी आ गई। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनग्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, ओके, मुझे ऐसा लगा कि मैं कम्प्लीटली इस चीज़ से मैं थक गई हूँ, है ना। और द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव, ठीक है। उसे लगा कि इसी टॉपिक पे लिखकर वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लिखने में स्मार्ट हो गई है, ठीक है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और उसे लगा कि अब कुछ अलग तरीके से लिखना चाहिए, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड्स एंड who's गुड एट पोएट्री, और इस बार मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे अलग तरीके से लिखना चाहिए। तो आई हैड टेकन हेल्प फ्रॉम सैन हु वॉज गुड इन पोएट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और इस बार मैंने जो ऐसे वो किस फॉर्म में लिखा, पोएम की फॉर्म में लिखा, ठीक है। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और जब उसने कहा कि ही विल हेल्प मी, ठीक है, राइटिंग दिस ऐसे इन अ पोएम फॉर्म, आई वॉज वेरी हैप्पी। Mr. Casing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject that I had make sure the joke was on him, ठीक है। मुझे लगा कि वो जो मिस्टर केसिंग है वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद इस तरीके से लिख के, है ना,
इस टॉपिक पे, जो कि उसका पनिशमेंट है, उसको इस तरीके से लिखकर, असाइनमेंट को पोएम की फॉर्म में लिखकर, शायद वो केसिंग, जो मिस्टर केसिंग है, ठीक है, उन्हीं पर वो जोक क्रैक कर देगी, ठीक है, मतलब उनका मजाक बना लेगी, ठीक है। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है, शी फिनिश्ड हर पोएम एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ठीक है, एक मदर डक के बारे में थी, और एंड अ फादर स्वान, ठीक है, एंड 3 बेबी डकलिंग्स, और उन एक फादर स्वान और मदर डक के 3 बच्चे थे, ठीक है, हु वर बिटन टू डेथ by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke in the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to serve other class as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. Okay, so she finally wrote her third assignment in the form of poem, ठीक है, and she wrote a satire that a father swan bite his 3 baby duckling to death, ठीक है, क्योंकि उसके फादर स्वान के जो 3 बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, ठीक है, तो उनको वो बाइट करता था, और इतनी तेज बाइट किया कि शायद वो मर ही जाए बिकॉज ऑफ देयर नॉइजी नेचर। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि जब उसने ऐसे लिखा तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसको बहुत लाइटली लिया, ठीक है, ही हैड टेकन इट इन राइट वे, और प्रोफेसर जो थे उन्होंने पूरी ये जो पोएम थी उसको क्लास में रिसाइट किया, ठीक है, और अपने भी कमेंट्स ऐड किए साइमल्टेनियसली। वो बहुत ज़्यादा ऑथर जो थी एन फ्रैंक, वो फॉर्चुनेट थी, ठीक है, कि उनके जो सर थे उन्होंने उसको डांटा नहीं, ठीक है, और अब उस इंसिडेंट के बाद में उसको कभी भी और होमवर्क नहीं मिला। ऑल्सो मिस्टर केसिंग जो प्रोफेसर थे मैथ्स के, वो भी जोक्स, और वो भी आजकल क्लास में काफ़ी सारे जोक्स बोलते हैं, मतलब अब वो थोड़ा सा जॉली नेचर के हो चुके हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, थैंक यू।